Hello everyone, am I audible? Yes, no. Yes, sir, audible है. Okay. So let us begin. We are here to understand कि product development course में क्या होगा and what it is about. और उसके अलावा being a product engineer or product manager तुम्हारी लाइफ में क्या डिफरेंसेस होंगे, ठीक है? So before taking any more time, first thing that I will do is like I will switch to a window. Uh, this one. Yeah, let me take this on the left side and somewhere in window on the right side. Yeah, I will give few demos कि क्या हो सकता है, ठीक है? What you can do. So on the right side, we are basically there is a window which is expressing few numbers, and if you see this H and T, this is basically saying humidity and temperature. H means humidity, and T means temperature. Okay, and what this code is doing, if I go back to home, so let me clear the nonsense. It's posting data to this interface. काटो चल रियल Someone got on. बाज So basically, that's what that particular code is doing, posting here. So the humidity is 62, temperature is 28.5. Okay, and there is like a simple application of IoT. Okay, and one more thing that I want to show you before this, let me switch off this video and switch on one of the numbers. So basically, we will discuss the as a product engineer what all we can do, and while learning this course what you can learn. So this is the line flow robot. Video is visible to everyone, or let me spotlight it first. Now you will be able to see the video. So this is the robot. It is using few sensors. These are the sensors here and here. One of the motor remote, and then microcontroller. Few motors and characteristics of the robot. Okay, and what is this robot? Basically, this is a autonomous robot. Okay, and so over there, just this. So our particular adapter to the robot. And अगर तुम लोगों ने कभी कंट्रोल सिस्टम जैसा वर्ड सुना होगा, दिस इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ अ कंट्रोल सिस्टम. क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम. सेंसर सुना होगा, दैट इज देयर. माइक्रोकंट्रोलर सुना होगा, दैट इज देयर. मोटर्स, दैट इज देयर. And ultimately this is robotics. Okay, this type of robot is nothing but a robot which can follow line. And industry में इसके बहुत सारे uses applications हैं. Again, professionally in industry we know this as automated guided vehicle (AGV). So this was one of the things. Okay, so अभी मैं जो दिखा रहा था, those were like
demos of a robot and a system which is based on an IoT. ठीक है? And the IoT वाला part looks like this. Again, a controller, a sensor known as DST11. This sensor can read humidity and temperature. And then this is the module. This one costs around 100 rupees and it can connect to Wi-Fi and send data to the Wi-Fi. Okay. So before doing anything, let me ask, ठीक है, questions. How many of you have used microcontrollers before? Sensors use किया है? So you can reply in the chat box or you can unmute yourself and answer. So it will be best if we interact, right? So हम बातचीत करेंगे, आउटपुट ज़्यादा बेटर आएगा. And there is a method जिसमें मैं खाली PPT देख के कुछ चीज़ें बोल दूँ, output will be less good. Okay, so what we want is like better outputs. Sir, chat box is disabled. So let me generalize a question. Is there anyone who is from electronics background? Yes, no? Chat box is disabled. Okay, sorry. I think the chat box was disabled. I enabled it just now. So जो लोग chat box में अभी तक जो भी टाइप करना चाहते थे नहीं हो रहा था, अब हो सकता है. ठीक है? Sorry from my side. So who is from electronics background? Quick. बताओ बताओ. Am I audible? सुनाई तो दे रहा है, right? Yes. So Ame is from electronics. Anyone else? So electronics, electrical and computer science. ये तीन branches में microcontrollers, sensors, is like internet and communications, ये सब include होता है. So basically the thing that I want to ask कि किन लोगों ने सब कुछ practically किया है? Have you used a microcontroller before? Other than जो syllabus में 8085 और 8051 है, other than that, वो सब 1970s की चीजें हैं जो अब यूज नहीं होती हैं, बस सिलेबस में है एंड सिलेबस में ही रहना चाहिए और सिलेबस से भी हट जाना चाहिए आइडियली. Okay, so let me start. The thing is, this session is about how you can become a product engineer. ठीक है? And that too mostly full stack product engineer. कि सब कुछ पता होना चाहिए, सब कुछ आना चाहिए. Am I audible to everyone? Yes, sir. Let me ask specifically. Jess, can you hear me? Pranay, can you hear me? Yes, sir. Yes, I can yes, hear you. sir. I can hear you. Hello guys, can you hear me? सुनाई दे रहा है? ठीक है, अमेय को सुनाई दे रहा है, प्रणय को सुनाई दे रहा है. सो ऋषभ, कैन यू हियर मी नाउ? तुम्हारे एंड पे, अदरवाइज नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा. ठीक है. सो हाउ यू कैन बिकम अ प्रोडक्ट इंजीनियर. ठीक है, दिस इज द थिंग दैट यू नीड टू लर्न, दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड. ठीक है, तो क्या क्या कवर करेंगे? अल्टीमेटली वी विल गेट टू नो कि प्रोडक्ट इंजीनियर या प्रोडक्ट मैनेजर कौन होने वाला है. ठीक है, व्हाट इज द स्किल्स दैट यू मस्ट acquire to become a product engineer specifically in the field of electronics or electronics में भी क्यों, will come to that. And then career opportunities. ठीक है, what is the career opportunities in this particular field. So this is the map, mind map. हमारे मैप में क्या होता है? Why everyone is studying. तुम सबने इंजीनियरिंग क्यों की, क्यों कर रहे हो? The answer is job. Ultimately job चाहिए. ठीक है, so there are two pathways. One pathway leads to
अल्टीमेटली जॉब, वन पाथवे लीड्स टू अल्टीमेटली बिजनेस. ठीक है, कैटेगरीज आर लाइक दिस, मोस्टली 90 and 10. ठीक है, 90% of the people are going for job, 10% of the people are going for business in most of the cases. So currently what we are going to discuss is कि ये जो जॉब वाला पार्ट है ये कैसे मैनेज होगा. एंड दिस इज लाइक माइंड मैप ऑफ दैट, कि मैक्सिमम लोगों के दिमाग में जिस तरीके का एग्जीक्यूशन है, दैट विल लीड टू दिस टू कैटेगरीज. वन इज लेबर, अनदर इज सुपरवाइजर. एंड व्हाट यू वांट टू अचीव, व्हाट यू वांट टू बिकम इज अल्टीमेटली एदर अ मैनेजर और अ डिजाइनर. ठीक है, बाय डिजाइनर जो जॉब रोल विल बी मोस्टली R&D, मैनेजर विल बी लाइक टीम लीड जो प्रोडक्ट मैनेज करने वाला है, इनके नीचे होगा सुपरवाइजर, इनके नीचे होगा लेबर. ठीक है, बट द वे वी आर लर्निंग इन द एजुकेशन सिस्टम, उसमें तुम अल्टीमेटली या तो लेबर बन पाओगे या तो सुपरवाइजर बन पाओगे. ओके, सो फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू आस्क योर सेल्फ, विच रोल यू वॉन्ट. ठीक है, ये दोनों चाहिए किसी को? एनीवन वांट दीज टू? ठीक है, नो, प्रणय डजंट वांट इट. और कोई? Who wants to be here? Either manager or a designer. तो मैनेजर इज लाइक तुम्हें टेक्निकल भी आना चाहिए, साथ में पीपल स्किल, अदर स्किल्स जो मैनेजमेंट में लगने वाली है वो पता होनी चाहिए. एंड डिजाइनर इज लाइक मोर कोर नॉलेज होनी चाहिए, मोर नॉलेज टुवर्ड्स द फील्ड, राइट. वहां पे भी मैनेजमेंट स्किल लगेगी, बट इज लाइक लेस एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द कंपनी फ्रॉम दैट साइड. ठीक है, so who wants to be on designer side, who wants to be on manager side? Pranay wants to be on this side. Anyone else? Jayesh, कौन सी जॉब रोल चाहिए हमें? Designer, I think. मल्हार, Electronics. ठीक है. सो द अल्टीमेट एम तुम्हें यहां होना है. ठीक है, एंड द थिंग इज द वे वी आर लर्निंग थिंग्स, वो हमें इसकी प्रिपरेशन कराता है. ठीक है, सो व्हाट यू कैन डू एक्स्ट्रा सो दैट यू अचीव दिस वी मस्ट नो. ठीक है, सो इट्स लाइक ये कैसे अचीव होगा, विल कम टू दिस. बिफोर दैट वी मस्ट नो कि कुछ चीजें बदल गई हैं. पहले इजी था, पहले तुम्हारी फील्ड थी मैकेनिकल की कंपनी ज्वाइन करते थे, मैकेनिकल का काम करते थे. इलेक्ट्रिकल फील्ड थी, इलेक्ट्रिकल कंपनी ज्वाइन करते थे, इलेक्ट्रिकल का काम करते थे. बट अब 21st सेंचुरी है, चीजें बदल गई हैं. ठीक है, क्या बदला है? अभी चीजें स्मार्ट हो गई है. पहले टीवी होता था, अब स्मार्ट टीवी है. ठीक है, फ्रिज होता था, तो फ्रिज इज लाइक इलेक्ट्रिकल सिस्टम, पर अब स्मार्ट सिस्टम है, तो वहां पर इलेक्ट्रॉनिक्स और कोड भी इन्वॉल्व हो गया है. ठीक है, पहले कार फुल्ली मैकेनिकल होती थी, अब कार में जितना मैकेनिकल है उतना ही इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स भी है. बैटरी निकाल दो कार से, कार स्टार्ट नहीं होगी, राइट. सो चीजें बदल गई हैं, चीजें स्मार्ट हो रही हैं, इंटरडिसिप्लिनरी एस्पेक्ट ऐड हो गया है. अब हर प्रोडक्ट में एक्स्ट्रा क्या किया जा सकता है, और क्या फीचर मिल सकता है, जिसमें ज्यादा फीचर होगा मैं वो खरीदूंगा. और एज अ कंपनी वो भी यही बिल्ड करना चाह रहे हैं कि और क्या एक्स्ट्रा हो सकता है. एंड फॉर दैट ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि बहुत सारे कंसेप्ट को इंक्लूड करें, चीजों को स्मार्ट बनाएं. ठीक है, एंड 21st सेंचुरी में everyone is using laptops, smartphone, internet, right? And all these will require software, and any kind of software will run on electronics. So one question, कि इलेक्ट्रॉनिक्स में किस ब्रांच को सबसे ज्यादा वैल्यू मिलती है, या फिर एज अ जॉब बोले तो किस ब्रांच को सबसे इजीली जॉब मिल जाती है? Electronics and telecommunication. What do you think? Mechanical, electrical, electronics, chemical, civil, computer science? So प्रणय ने कहा ETC को मिल जाती है. ETC is like electronics and telecommunication. Anyone else? CS वाले कितने लोग हैं? ठीक है,
सो परसेप्शन सेज कि परसेप्शन नहीं, बेसिकली आईटी में है, राइट? इतनी सारी आईटी कंपनियां हैं, भर भर के हायरिंग होती है, ठीक है? सो अब मेरा क्वेश्चन है कि just a minute, let me change few things. Okay, sorry, I wasn't able to hear तुम लोग जो भी बोल रहे थे. So I will repeat the question. CS में कितने लोग बिलीव करते हैं कि CS की सबसे ज़्यादा डिमांड है? Now I can hear you. तो CS और IT वाले बहुत लोग हैं, राइट? कि CS और IT में बहुत जॉब मिलती है. अब क्वेश्चन में होगा कि CS और IT वाले सॉफ्टवेयर बनाते हैं, कोई सॉफ्टवेयर इलेक्ट्रॉनिक्स के बिना चल सकता है क्या? Yes, no, No, sir. right? Impossible. So any software you want will always need some kind of electronics. For example, अभी तुम्हारे पास स्मार्टफोन है, उसमें तुम प्रोग्रामिंग कर सकते हो, सॉफ्टवेयर बिल्ड कर सकते हो, बट विदाउट इलेक्ट्रॉनिक्स सॉफ्टवेयर पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है? सो बाय दैट लॉजिक इलेक्ट्रॉनिक्स की तो ज़्यादा डिमांड होनी चाहिए, हाँ या ना? Yes, sir. ठीक है, तो फील क्यों नहीं होता है कि नहीं है? तो तुम्हें इतनी ओपनिंग्स क्यों नहीं दिखती जितनी आईटी में दिखती है? अब मतलब अभी हम कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे और पूरा गेम इसी का है. ये गेम समझ में आ गया तो तुम्हारा जॉब रोल, तुम्हारी सैलरी और ये सब कुछ इजी हो जाएगा, मैक्सिमाइज हो जाएगा. तो कैन एनीवन टेल में दिखती है, ठीक है? मतलब सिंपल 20,000 इंजीनियर्स को हायर किया, तो ऑब्वियसली उन 20,000 इंजीनियर्स को 20,000 लैपटॉप देगी, है ना? वो 20,000 इंजीनियर्स अपने पास 20,000 फोन रखते हैं, राइट? तो इसकी भी तो डिमांड बढ़ी. तो अब मैं कुछ डेटा ऐड करता हूँ, है ना, जिससे चीज़ें इजी हो जाएंगी. सो लेट मी गो टू व्हाइट बोर्ड. सो द डिफरेंस इज कि जब तुम तो तुम जब हुए उस टाइम ये ज़्यादा जॉब है, किस फील्ड में ज़्यादा जॉब है, कौन सी कंपनी ज़्यादा पैकेज देती है, ठीक है? तो देयर आर टू वेज टू लुक एट इट. फर्स्ट है कि जब तुम फोर्थ ईयर जॉब, सो व्हाट डू यू थिंक, इन्फोसिस अगर तुम्हारी कंपनी में आए तो कितना पैकेज ऑफर करेगी? 3 lakh. ठीक है, तो मैं लिख लेता हूँ. तो अभी हम कुछ नंबर्स ले रहे हैं, माइट बी थोड़ा प्लस माइनस हो, ठीक है, कंप्लीटली फाइन. बट अब ये सेम, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉनिक्स की कोई कंपनी आई वो कितना पैकेज ऑफर करती है? या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स को मैं रिप्लेस कर रहा हूँ 4 कंपनी से, डोंट नो, मतलब कंपनी आती ही नहीं है क्या? ठीक है. सो अब मैं दो लोगों की जर्नी कंपेयर कर रहा हूँ, ठीक है? एंड इस जर्नी में मैं स्पेसिफिकली नाम क्या ऐड कर देता हूँ. तो यहाँ की जर्नी तो सबको पता है, आईटी कंपनी वाली. कोर की जर्नी के लिए मैं एक नाम ऐड कर देता हूँ, अजिंक्य कामत. ठीक है, सो अजिंक्य कामत अपनी ब्रांच से इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, ईसी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन. फिर फोर्थ ईयर में मैं जिद करके रखी थी कि नहीं, मैं आईटी कंपनी में नहीं जाऊंगा, मैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी में ही जाऊंगा, ठीक है? और अजिंक्य कामत ने, जिनकी ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक्स थी, इन्होंने जिद करके रखी थी कि मैं इलेक्ट्रॉनिक्स में जाऊंगा, मैं आईटी कंपनी में नहीं जाऊंगा, ठीक है? एंड देयर इज एन एक्स गाय जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता था. उसने बोला कि ठीक है, मुझे जॉब से मतलब है, जिसमें मिल जाएगी. और इसकी ब्रांच भी लेट से इलेक्ट्रॉनिक्स की थी और इसने आईटी कंपनी में जॉब ले ली, इन्फोसिस ज्वाइन कर लिया 3 लाख पर एनम. अजिंक्य कामत ने ये जिद की थी, तो अजिंक्य कामत को कॉलेज से तो प्लेसमेंट मिला नहीं, इन्होंने ऑफ कैंपस एक कंपनी में प्लेसमेंट किया. नासिक की बेस कंपनी है, अभी मैं नाम नहीं बता रहा, बट उनको पैकेज मिला 1.2 टू 1.5 लाख ऐसे कुछ पर एनम का था, ठीक है? ह्यूज डिफरेंस, राइट? तो अब पहली चीज, अजिंक्य का डम था बेचारा कि 3 लाख पर एनम को छोड़ के 1 लाख 1.5 लाख पर एनम ले रहा है. यस, नो, Yes. राइट?
यहाँ पे 2x मिल रहा है, यहाँ पे 1x मिल रहा है। 2x इज ऑलवेज बेटर देन 1x। ठीक है, यस अब लेट्स मूव इन द करियर। फिर इसकी ट्रेनिंग हुई, ठीक है, इस बंदे की 6 मंथ ट्रेनिंग पीरियड था, फिर खत्म हुआ 1 साल तक। मतलब ट्रेनिंग पीरियड में इट्स लाइक जब एलपीए ऑफर करते हैं दैट इज डिफरेंट, और ट्रेनिंग पीरियड में अलग मिलता है। तो ट्रेनिंग पीरियड में इट वाज कम्प्लीटली डिफरेंट। फिर उसके बाद यहाँ पर 6 मंथ के बाद उसे 3 लाख पर एनम मिलने लगा। 1 साल सेकेंड ईयर कंटिन्यू किया, 3 लाख पर एनम मिला। ठीक है, अजिंक्य कामत ने भी कंटिन्यू किया, 1 साल 1.5 लाख पर एनम मिला। सेकेंड ईयर उनकी थोड़ी वैल्यू बढ़ गई। ठीक है, इस बंदे की भी वैल्यू बढ़ गई, इसको थोड़ा सा हाइक मिला। ठीक है, 10% हाइक मिला और इसका पैकेज हो गया 3.3 लाख पर एनम। ये समझ में आया, हाइक वाला फंडा होता है। मतलब तुम 1 साल कंटिन्यू किया, तुम्हारी सैलरी में हाइक आया 10% पर एनम, और तुम्हें 3.3 लाख पर एनम मिलने लगा। ठीक है, अजिंक्य कामत के केस में भी ऐसा ही हुआ। 1 साल बाद अजिंक्य कामत की सैलरी में भी हाइक आया, और अजिंक्य कामत की सैलरी अचानक से 3 लाख पर एनम हो गई। ठीक है, यहाँ 2x हो गया, यहाँ 10% का ग्रोथ हुआ। ठीक है, यहाँ पे 100% का ग्रोथ हुआ। फिर से 1 साल और बढ़ा। ठीक है, थर्ड ईयर आया। थर्ड ईयर के बाद इज लाइक आईटी में तुम लोगों ने सुन रखा होगा अपने सारे सीनियर फ्रेंड से कि स्विच कर लो, पैकेज बढ़ जाता है। सुना है? सही है। तो इस कंपनी ने स्विच किया और बोला कि ठीक है, मैं अब 3 साल का एक्सपीरियंस मेरे पास है, मैं दूसरी कंपनी में जा रहा हूँ, इन्फोसिस छोड़ के XYZ, और इसको सडनली पैकेज मिल गया 5 लाख पर एनम का। ठीक है, अजिंक्य कामत सर ने भी सेम किया, बोला कि अब मेरे पास भी 2 साल 3 साल का एक्सपीरियंस है, मैं भी स्विच कर रहा हूँ। तो इन्होंने दूसरी कंपनी ज्वाइन की, सिस्टमैटिक्स रोबोटिक्स करके बैंगलोर में, और इनको सडनली पैकेज मिला 6 लाख पर एनम का। ठीक है, तो दीज आर लाइक रियल नंबर्स। ऊपर वाला इज अ वेरी जनरल, तुम गूगल करोगे तुम्हें मिल जाएगा। नीचे वाला थोड़ा डिफिकल्ट से मिलेगा स्टोरी। सो 1 साल और कंटिन्यू करोगे, फिर से स्विच कर लोगे, ये 5 का 6 हो जाएगा। अजिंक्य कामत का नेक्स्ट विद इन 6 मंथ 8 लाख पर एनम था, अगले साल 12 लाख पर एनम था। ठीक है, दिस इज लाइक 4 इयर्स की जर्नी, एक इस जॉब रोल में, एक कोर जॉब रोल में। ठीक है, सो द लॉजिक इज कि जब तुम डेटा देखते हो तो डेटा को देखने का या फिर एनालिसिस करने का फंडा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो अभी सब लोगों ने मशीन लर्निंग AI सुन रखा होगा, राइट? डेटा साइंस, सो डेटा साइंस में मशीन लर्निंग बिल्ड होता है, मशीन लर्निंग पे AI बिल्ड होता है। तो डेटा साइंस बोलता है कि डेटा है, तुम उसको एनालाइज कैसे कर रहे हो। अगर एनालिसिस का लॉजिक सही है तो आउटपुट्स अच्छे आएंगे, तुम डिसीजन सही लोगे। ठीक है, सो सेम एनालिसिस का लॉजिक वी हैव टू अंडरस्टैंड कि जनरली हम डे 1 का एनालिसिस देखते हैं कि ये यहाँ लाई करता है और ये यहाँ लाई करता है, दिस इज गुड। ठीक है, यहाँ पर सबके फंडे गलत हो जाते हैं। व्हाट यू हैव टू लुक इज लाइक अ ब्लॉक ऑफ टाइम कि अगले 5 साल में विच करियर इज बेटर। ठीक है, हो सकता है जिसकी स्टार्टिंग लोअर थी वो ज्यादा अच्छा हो, अगर तुम 5 साल में देखो। ठीक है, तो इसका तुम टोटल 5 साल का एवरेज निकालना और इसका 5 साल का एवरेज निकालना। ठीक है, अब इस बंदे का जो 6 लाख पर एनम में पहुंच गया है, इसका 6 से 7 हो पाएगा, 8 हो पाएगा, दैट्स इट। ठीक है, और बहुत टाइम लग जाएगा। पर ऐसा क्यों? यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जिनके पास 5 साल का, 6 साल का, 10 साल का एक्सपीरियंस है। कोर में यू विल फाइंड अ हैंडफुल पीपल, बहुत ही कम लोग मिलेंगे जिनके पास 5 साल प्लस का एक्सपीरियंस होगा। ठीक है, जिस दिन तुम वो अचीव कर लेते हो, कॉन्स्टेंटली तुमने उस कोर फील्ड में कंटिन्यू किया, फर्स्ट ईयर तुम थोड़े से वैल्यूबल बन गए, सेकंड ईयर और ज्यादा वैल्यूबल, तो तुम्हारी वैल्यू सडनली ऐसे इंक्रीज होती रहती है। इस फील्ड में बहुत भीड़ है, इस फील्ड में बहुत कम भीड़ है। ठीक है, तो एज पर दैट तुम्हारा ग्राफ ऐसा होगा। कोर में डे 1 पे यहां से शुरुआत हुई थी और इट विल बी लीनियर थिंग। ठीक है, और एक दिन जाके स्टैग्नेंट भी हो जाएगा। सो विच इज बेटर, दिस वन और दिस वन, A और B, which one will you prefer? किस किस को B चाहिए? अमी और प्रणय A बोल रहे हैं। So logical है, अब A will be always much better, right? So this is the thing that you have to understand. और अब ये भी समझना पड़ेगा कि यहाँ की डिमांड is much more than this. ठीक है,
ओनली द थिंग इज कि तुम जिस स्टेज पे हो, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल मैं मेरे कॉलेज का एग्जाम्पल देता हूँ। हम लोग के कॉलेज में कोर में बहुत कम कंपनी आती है। आई एम फ्रॉम VNIT, तो ठीक है। IITs में भी कोर में बहुत कम कंपनी आती हैं, स्पेसिफिकली इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, इन सारी ब्रांचों की बात करें। और IT में बहुत सारी कंपनीज आती है, ठीक है। तो कोर कंपनी आती क्यों कम है, ये किसी को पता है? रिक्वायरमेंट ही नहीं है क्या? फॉर एग्जाम्पल महिंद्रा अगर कोर कंपनी है, कार्स और ट्रैक्टर्स मैन्युफैक्चर करते हैं, तो उनको इंजीनियर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है क्या? और अगर होती है तो आते क्यों नहीं है? किसी को पता है? किसी ने क्वेश्चन पूछा है? सो अगर रिक्वायरमेंट है तो फिर लेने क्यों नहीं आ रहे, हायर करने क्यों नहीं आ रहे? मे बी उनका स्टूडेंट्स की तरफ से एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा होगा जो उनके रिक्वायरमेंट में फिट नहीं बैठते होंगे। ठीक है, तो लॉजिक सही है। खाली इसको दूसरे तरीके से बोलेंगे। तुमने अपने फेवर के हिसाब से बोल लिया, मैं कंपनी के फेवर के हिसाब से बोलूंगा, और कि स्टूडेंट प्रिपेयर्ड इनफ नहीं है, ठीक है। ओके। कि सो द थिंग, द मेन डिफरेंस बिटवीन दैट IT और कोर इज लाइक IT कंपनी तुम्हें हायर करती है, तो तुम सबने देखा ही है कि द IT कंपनी का लॉजिक होता है कि ब्रांच से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। एक बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग तुम्हें आना चाहिए, उसके बाद वो एनालॉजिक मतलब टेस्ट वगैरह लेके ये देख लेते हैं कि ठीक है तुम लर्निंग कैपेबिलिटी रखते हो कि नहीं रखते हो, तो एप्टीट्यूड टेस्ट ये सारी चीजें हो जाती हैं एंड यू आर सिलेक्टेड। भले तुम सिविल के हो, तुमने आज तक कोडिंग की है कि नहीं की है, फर्स्ट ईयर में C पढ़ा था, दैट इज मोर देन इनफ। सही है, इन सबका प्लेसमेंट होता है IT कंपनी में। सो द फंडा इज कि यहाँ पर ट्रेनिंग पीरियड इज लाइक ओनली 3 to 6 month। इसमें उन्हें जो भी तुम्हें काम करवाना है ये तुम्हें सिखा देंगे, एंड एक बार तुम्हारे पास वो 3 to 6 month की स्किल आ गई तो ये तुमसे काम करवा सकते हैं जिससे उनको प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। कोर कंपनी में दिस पीरियड इज लॉन्ग, ठीक है, कि 1 साल 2 साल की ट्रेनिंग करनी पड़ती है एज पर करंट स्टेज, ठीक है। अगर आज के किसी लेट्स से इलेक्ट्रॉनिक्स या मैकेनिकल वाले बंदे को महिंद्रा ने हायर कर लिया, तो होगा क्या, मिनिमम इतना टाइम स्पेंड करना पड़ेगा तब जाके वो फ्रूटफुल बनेगा, वो बंदा, पर्टिकुलर बंदा, ठीक है। तो होता क्या है, वो बोलते हैं कि नहीं, हम फिर ऐसे फ्रेशर्स को क्यों ले, इससे अच्छा हम 2 साल के एक्सपीरियंस को लेके सीधे ज्यादा सैलरी देंगे, ठीक है। तो IT कंपनी बोलती है कि 3 लाख पर एनम देंगे, वो बोलते हैं कि ठीक है हम सीधे 10 लाख पर एनम की सैलरी देंगे और 2 साल वाले एक्सपीरियंस को रखेंगे, ठीक है। तो व्हाट दे आर लुकिंग फॉर इज स्किल्स, ठीक है, जिसके लिए तुमने 4 साल कॉलेज में टाइम स्पेंड किया है, सीखा है, ठीक है। सो दैट इज द एक्सपेक्टेशन कि आना चाहिए। तो IT कंपनी में भी IT कंपनी एक्सपेक्ट नहीं करती कि तुमने 4 साल जो सीखा है वो यूज करेंगे, दे नो कि 3 या 6 मंथ में तुम्हें सिखा देंगे, ठीक है। बट यहाँ का प्रॉब्लम है कि तुम्हें वो 3 या 6 मंथ की जर्नी के बाद तुम उस स्टेज पे अटक जाओगे, ठीक है। यहाँ से ये जंप करना बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है। स्पेसिफिकली जब तुम वर्किंग मोड में चले गए, वर्किंग के फॉर्मेट में चले गए, लर्निंग का फॉर्मेट अलग है, वर्किंग का फॉर्मेट अलग है। जब सुबह 10 से 6 तुमने काम किया, एग्जॉस्ट हो गए, तो ऑब्वियसली अब क्या बोलेंगे, अप स्किलिंग बहुत डिफिकल्ट हो जाएगी, राइट। तो ये 3 या 6 मंथ की ट्रेनिंग में ही मैक्सिमम लोग अपनी जिंदगी बिता देते हैं। वो 3 या 6 मंथ की ट्रेनिंग में एक पाइथन पे कुछ सीख लिया था, फ्रंट एंड या बैक एंड या कोई और पर्टिकुलर टास्क इम्प्लीमेंट करना, और फिर मोस्ट ऑफ देयर लाइफ टाइम या फिर अगले 3-5 साल वही करते रहते हैं, ठीक है। यहाँ पर कंपनीज को तुम्हें अपस्किल करना ही पड़ता है, वो तुम्हें यहाँ से यहाँ तक ले जाते हैं क्योंकि उनका काम ही यहीं से शुरू होता है, ठीक है। इस लेवल ऑफ, तो ये अगर मैं 1 2 3 ग्रेड करूँ, तो 3rd लेवल ऑफ स्किल आने के बाद ही तुम उनके लिए फ्रूटफुल बन जाओगे, काम वहीं से शुरू होता है, ठीक है। उसके नीचे तो लेबर या सुपरवाइजर काम कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी जो काम मिलता है इस कैटेगरी में, इट कम्स अंडर दिस, ठीक है, कैटेगरी। फॉर एग्जाम्पल, राइटिंग a code is completely different than developing an algorithm, ठीक है। टेस्टिंग a code is completely different than writing a code, ठीक है। तो उसके भी लेवल्स है that you have to understand जब तुम यहाँ जाते हो, ठीक है, टू टेक जॉब एट दिस पर्टिकुलर लेवल। यहाँ पे कंप्लीटली, यहाँ पे जॉब रोल अलग है, ठीक है। जो 1 लेवल की स्किल है, फॉर एग्जांपल अगर महिंद्रा को कार बनाना है तो नट बोल्ट टाइट करने पड़ेंगे, उसके लिए ITI वाले बंदे से काम हो जाता है, उसके लिए तुम्हें इंजीनियर रखने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। सेकंड लेवल ऑफ स्किल है सुपरवाइजर्स रखना है, उसके लिए डिप्लोमा वालों से काम हो जाता है, ठीक है, फिर से इंजीनियर रखने की जरूरत नहीं है। तो वो इंजीनियर्स को सीधे उसी लेवल पे रखते हैं जहाँ पे इंजीनियरिंग का काम है, ठीक है। यहाँ पर भी कोई ITI वाला बंदा डिबगिंग कर सकता था, ठीक है। द थिंग इज कि इंजीनियर्स रेडी है तो फिर ITI वालों को क्यों देना है, राइट। सो दैट इज व्हाट इज हैपनिंग। तो अब इफ यू लुक फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अ कंपनी, तो ऐसा नहीं है कि महिंद्रा को नहीं चाहिए, ठीक है। दे आर लुकिंग फॉर
फ्रेशर्स ऑल्सो, जिनको वो ये पैकेज देने के लिए रेडी हैं, जस्ट डू यू हैव द स्किल्स, क्या चाहिए उन्हें, ठीक है। फिलिप्स को इंजीनियर चाहिए, वो लोग स्मार्ट बल्ब बना रहे हैं, ठीक है, जो IoT से कनेक्टेड होने वाला है, राइट। इंडिया में गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया है, बहुत सारी फंडिंग दे रही है, बहुत सारी कंपनीज ने अप्लाई कर दिया है, फैक्ट्रीज बिल्ड हो रही है जो इलेक्ट्रॉनिक्स के अराउंड होने वाला है, ठीक है। तो इन लोग को लेबर की रिक्वायरमेंट है, इन लोग को इंजीनियर्स की रिक्वायरमेंट है, सबकी रिक्वायरमेंट है, बट अगेन इट विल कम टू दी स्किल्स है कि नहीं, राइट। एंड बेस्ड ऑन दैट तुम्हें पैकेज मिलेगा, जॉब मिलेगा, ठीक है। सो वाइल प्लानिंग, प्लान फॉर नेक्स्ट 3 to 5 years की 5 years का टोटल कितना मिलने वाला है, ठीक है। 5 years का टोटल 3 + 3 + 3 + करके 15 चाहिए, या फिर 1 + 3 + 6 + 8 + 20 ऐसा कुछ चाहिए, ठीक है। एंड दिस डिफरेंस यू हैव टू अंडरस्टैंड। सो दिस इज व्हाट विल कम इनटू द पिक्चर कि उनको मल्टीपल टास्क हैंडल करने वाले लोग लगेंगे, ठीक है। वन मोर थिंग, ये सुन रखा है सबने कैटेगरीज जो अभी अभी मैंने बताई, ITI, डिप्लोमा, इंजीनियर, ठीक है। ITI होता है इलेक्ट्रॉनिक्स में भी, CS में भी, मैकेनिकल में भी। डिप्लोमा होता है इलेक्ट्रॉनिक्स में भी, CS में भी, मैकेनिकल में भी। इंजीनियर भी तीनों में होता है। सो व्हाट इज द डिफरेंस? किसी ने सोच, करिकुलम करिकुलम में क्या फर्क पड़ेगा? या और सो व्हाट इज द डिफरेंस? और अगर सिलेबस एक ही है तो एक ही बना दो ना, एक ही फील्ड बना दो, एक ही ब्रांच बना दो। स्किल्स में भी डिफरेंस रहता है, हाँ, like they teach different skill at different level, like ITI में different skill रहती है, डिप्लोमा में भी different skill रहती है, and सही है। engineering में और भी इंजीनियरिंग में भी I mean diploma and engineering are correlated, like diploma 12th के बाद करते हैं ना, so like they in second year they switch to engineering also, तो सही like है, ठीक है। डिप्लोमा एंड इंजीनियरिंग में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस ज्यादा 2 डिफरेंस years नहीं का। होता। हाँ तो यस, अगर ज्यादा डिफरेंस नहीं है तो दोनों को सेम जॉब रोल होनी चाहिए। मिलती भी है if they manage by themselves। सो अगर बेसिकली हाँ, अगर स्टूडेंट डिप्लोमा से इंजीनियरिंग में जाता है एंड लाइक देयर आर मेनी एग्जांपल्स, लाइक जिसने डिप्लोमा करके इंजीनियरिंग की उनको भी अच्छे पैकेज मिलते हैं। बिल्कुल, बट ये करनी पड़ी ना फिर, हाँ वो करनी पड़ी, तो क्यों? बिकॉज ऑफ स्किल्स, और सिलेबस भी डिफरेंट रहता है इन मोस्ट ऑफ द केसेस सर एज पर माय हाँ, तो नॉलेज। सिलेबस अलग क्यों है? क्योंकि द वे दे आर डिजाइंड, जॉब रोल्स अलग अलग है, ठीक है। दिस इज द गाय जो बनेगा ये, दिस इज द गाय जो बनेगा ये, दिस इज द गाय जो बनेगा इंजीनियर या मैनेजर, ठीक है। तो अभी मैंने फिलिप्स का एग्जांपल दिया, फिलिप्स ने स्मार्ट बल्ब लॉन्च किया था, ठीक है। जिन्होंने नहीं देखा उनके लिए मैं यहाँ दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये फिलिप्स का प्रोडक्ट है, ठीक है, विच कैन कनेक्ट टू इंटरनेट। इसको तुम एलेक्सा से ऑन ऑफ कर सकते हो, कलर कंट्रोल कर सकते हो। अब अगर ये प्रोडक्ट है तो इस प्रोडक्ट में स्टेजेस हैं। एक स्टेज है जब तुम इसको डिजाइन करोगे, ठीक है, उस स्टेज में रिसर्च लगेगा, ठीक है। उस केस में रिसर्च वाले इंजीनियर लगेंगे, और क्योंकि ये प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट मैनेजर टाइप के इंजीनियर्स भी लगेंगे, और आइडियली इंजीनियर लोग जो उस प्रोडक्ट का मैनेजमेंट करें, ठीक है। क्योंकि टेक्निकल प्रोडक्ट है तो इट विल बी मच बेटर कि अगर एक इंजीनियर हो और वो जाके टीम से बात करे कि ठीक है हमारे प्रोडक्ट में ये फीचर बिल्ड करना है बिकॉज ये लॉजिक है, तो इंजीनियरिंग की लैंग्वेज बोलेगा, पूरी की पूरी टीम को समझ में आएगी। प्रोडक्ट टेक्निकल है, ठीक है। सो अगर इसमें सर्किट इन्वॉल्व होगा और उसको सर्किट समझ में आता है तो वो बोलेगा PCB, ठीक है, वो बोलेगा ग्रीन थिंग, ऐसा नहीं बोलेगा, ठीक है। वो बोर्ड का साइज छोटा रखना है ऐसे नहीं बोलेगा, बोलेगा PCB छोटा रखना है, ठीक है। PCB का शेप राउंड रखना पड़ेगा क्योंकि जो भी डिजाइन बिल्ड हो रहा है वो ऐसा बिल्ड हो रहा है, ठीक है। तो मैकेनिकल डिजाइन टीम के हिसाब से शेप ऐसा होने वाला है, तो वो इन दोनों से कम्युनिकेट कर पाएगा, मैकेनिकल वाले से भी और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले से भी, और प्रोडक्ट बिल्ड करवा पाएगा। तो एक जॉब रोल होगी उस एंड पे जहाँ पे तुम प्रोडक्ट मैनेज करने वाले हो, ठीक है। उसमें दोनों एस्पेक्ट ऐड हो जाएगा, टेक्निकल और मैनेजमेंट वाला। सेकंड एस्पेक्ट होगा जहाँ पे तुम R&D करोगे, ज़्यादा कोर नॉलेज ऐड हो जाएगा। इसमें इंटरनेट कनेक्टिविटी कैसे देंगे, वोल्टेज से कन्वर्जन कैसे होने वाला है, रिलीज कैसे कंट्रोल होगी, राइट, ये सारी चीज़ें ऐड हो गई। ऐप से कैसे कम्युनिकेट करेगा, सही है। फिर होगा जब ये डिज़ाइन हो गया तब मैन्युफैक्चर करना है, ठीक है। तो उस दिन इंजीनियर जाके सारे PCBs को सोल्डर करेगा क्या, असेंबली इंजीनियर करने वाला है क्या,
नहीं, जॉब रोल अलग हो गई, ठीक है। तो असेंबली करने के लिए फिर आईटीआई वाले जॉब रोल्स में वो स्पेसिफिकली सिखाया जाता है, ठीक है। तो 4 साल के इंजीनियरिंग के करिकुलम में सोल्डरिंग नहीं सिखाते, आईटीआई वालों को सिखाते हैं। तो Yes. वो लोग बिल्ड करेंगे, और फिर आईटीआई को ये जो इंजीनियर ने प्लान बना के दिया कि ठीक है ये पर्टिकुलर सीक्वेंस की स्टेप फॉलो करनी है, ये टेम्परेचर होना चाहिए सोल्डरिंग के टाइम पे, क्लीननेस का ये लेवल होना चाहिए, ये कम्युनिकेट करने के लिए इन दोनों के बीच में एक गैप लगेगा, ठीक है। एक गैप मतलब एक बंदा लगेगा, गैप रहेगा अदरवाइज, राइट। तो वहां पर फिर डिप्लोमा आता है जो सुपरवाइजर का रोल बिल्ड करता है और ये दोनों के बीच का गैप ब्रिज करता है, ठीक है, और एग्जीक्यूट करवा के लेता है। समझ में आया? सो दिस इज व्हाट हैपेंस एंड अल्टीमेटली यू वांट टू बी हियर। तो अगर तुम्हें ये जॉब रोल मिल भी रही है सो डोंट टेक इट, ठीक है। अदरवाइज क्या होगा, तुम्हारी वैल्यू लॉन्ग टर्म में डिग्रेड हो जाएगी, तुम्हारा एक्सपीरियंस डिग्रेड हो जाएगा। तुम्हें सोल्डरिंग आती है बट तुम्हें रिसर्च नहीं आता। गेटिंग द पॉइंट? Yes. सो दीज आर द लॉजिक्स जो तुम्हें समझ में आने पड़ेंगे। एक बार ये सब कुछ समझ में आ गया देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि तुम्हें यहाँ लाइन नहीं करना है, ठीक है। करंटली द वे इट इज बिल्ड, भीड़ ज्यादा है तो यहाँ लोग ज्यादा लगते हैं, ठीक है। तो एक कंपनी में फॉर एग्जांपल फिलिप्स के वो बल्ब वाली टीम में 1, 2 या 3 प्रोडक्ट मैनेजर रहे होंगे, ठीक है। 10-15 R&D वाले लोग रहे होंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक साइड में 10-15 ऐप साइड के लिए लोग रहे होंगे एंड 100-200 लेबर्स रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ के रिक्वायरमेंट ज़्यादा है तो ये ज़्यादा दिखता है, ठीक है। और एज पर द करेंट सिलेबस इसी की तैयारी हो रही है, बट यू हैव टू गो हियर, ठीक है। तुम्हें इन कैटेगरीज में जाना है, राइट। सो अब अगर तुम्हें ये कैलकुलेशन समझ में आ रहा है तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि करना कैसे है, हाउ टू लाई इन दैट पर्टिकुलर कैटेगरी। सो अल्टीमेटली एज पर टुडे सिनेरियो तुम एक वन मैन आर्मी टाइप का बन जाओगे, ठीक है। जो टॉप लेवल है उस टॉप लेवल को सब कुछ पता होना चाहिए कि नीचे सारे काम कैसे होते हैं, ठीक है। तो जब तुम उस बल्ब की डिजाइनिंग का पार्ट बन रहे हो, तुम टीम लीड बनोगे, तो एक मैकेनिकल टीम भी तो है ना जो उस बल्ब का आउटर इंक्लोजर ये सारी चीजें डिजाइन कर रही है। एक ऐप वाली टीम भी है जो ऐप डिजाइन कर रही है, एक इलेक्ट्रॉनिक्स टीम भी है जो इलेक्ट्रॉनिक्स डिजाइन कर रही है। तो तुम्हें अगर ये तीनों की लैंग्वेज ये तीनों समझ में नहीं आता तो तुम टीम से कम्युनिकेट ही नहीं कर पाओगे। तुम मान लो CS से हो तो तुम CS टीम से अच्छे कम्युनिकेट करोगे, ऐप अच्छा बिल्ड हो जाएगा, मैकेनिकल डिजाइन और सर्किट वगैरह ठीक से रहेगा नहीं, प्रोडक्ट बेस्ट नहीं हुआ, राइट। इलेक्ट्रॉनिक्स टीम तुमसे खुश नहीं रहेगी, वो बोलेगी यार इसको तो कुछ आता ही नहीं है, इसको कैसे मैनेजर बना दिया। ऑब्वियसली तुम भी बोलते हो उन टीचर्स को जिनको कम नॉलेज है, तुम गाली मारते हो कि ठीक है ये टीचर को कुछ आता नहीं है, किसने इसको टीचर बना दिया। बोला है सबने अपनी अपनी लाइफ में, राइट। तो तुम्हें उस कैटेगरी में नहीं आना है। तो बेसिकली अल्टीमेटली इफ यू लाई ऑन द टॉप ग्रेड तो तुम्हें वो सब कुछ सीखना पड़ेगा, यू हैव टू बिकम दिस, ठीक है। और उसके लिए एज ऑफ टुडे इतनी बेसिक स्किल्स तो आनी चाहिए, ठीक है। जो भी तुमने बेसिक कंपोनेंट्स इतनी बार पढ़ चुके हैं, ठीक है, 9-10 से पढ़ाया जा रहा है, 11-12 में रिपीट हुआ था, फर्स्ट ईयर में फिर से रिपीट हुआ था। दोज बेसिक कंपोनेंट रेजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, डायोड, ये सब कुछ का जो रियल लाइफ एप्लीकेशन है वो क्या है किसी सर्किट में, दैट फिलिप्स के बल्ब में इस एलईडी के साथ जो सीरीज में रजिस्टर लगाना है उसकी वैल्यूज क्या होनी चाहिए, थ्योरेटिकल नहीं प्रैक्टिकल, और दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। एक बार ये तुम्हें सर्किट का कंसेप्चुलाइजेशन भी समझना पड़ेगा कि ठीक है कितनी एलईडीज लगानी पड़ेगी, कितने वोल्ट के लिए, वोल्टेज कन्वर्जन कैसे होगा, उस कन्वर्जन को करने के लिए किस टाइप का सर्किट लगेगा, ठीक है। जीनर डायोड से होगा या वोल्टेज रेगुलेटर से होगा या फिर बक बूस्ट मॉड्यूल लगाने पड़ेंगे। तो यू हैव टू फिगर आउट दैट, उसको फिर इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, डिजाइन करना पड़ेगा, पीसीबी डिजाइनिंग रोल में आ जाएगा, ठीक है। एक बार डिजाइन हो गया तो फर्स्ट R&D में तो तुम्हें ही सोल्डरिंग और डिबगिंग करनी पड़ेगी, यू आर डिजाइनिंग द प्रोडक्ट, ठीक है। तो वो स्किल्स भी आनी चाहिए। फिर कोडिंग वाला पार्ट इन्वॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो कोडिंग के 2 पार्ट है, एक है फॉर्मवेयर डेवलपमेंट जिसको लिखा है और दूसरा है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। फॉर्मवेयर डेवलपमेंट इज द कोड जो तुम्हारे इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर जाएगा, ठीक है, तुम्हारे चिप्स में जाने वाला है। और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज लाइक यूजर इंटरफेस, फॉर एग्जांपल ऐप वाला पार्ट, वेबसाइट वाला पार्ट, इन दोनों पार्ट से तुम्हारा बल्ब कंट्रोल होगा तो वो वाला पार्ट भी डेवलप करना है, राइट। तो ये भी पता होना चाहिए, ये भी आना चाहिए। अदर देन दैट तुम कोई भी प्रोडक्ट बना लो, ठीक है, अगर प्योरली सॉफ्टवेयर नहीं है, अगर हार्डवेयर है तो मैकेनिकल डिजाइन तो रहेगा ही ना, किसी बॉक्स में आएगा, उसका एनक्लोजर होगा, हाउसिंग होगी। सो वो सेंस भी समझ में आना चाहिए कि मैकेनिकली चीज़ें कैसे फिट होगी। तुमने सर्किट बना दिया ऐसे रैंडम शेप का, ठीक है, ऐसा एनक्लोजर डिजाइन करना डिफिकल्ट हो जाएगा, कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगा। इट विल बी मच फीजिबल कि तुम सर्किट ऐसा बनाओ, ऐसा बनाओ,
ठीक है, यहाँ का कॉस्ट और डिजाइनिंग टाइम सेव होता है उससे। तो ये सारे जो सेंसेस हैं, ये सारी जो स्किल्स हैं, दीज यू हैव टू बिल्ड अप। ठीक है, ये समझना पड़ेगा। और नॉट जस्ट थियोरेटिकल एंड थियरी वाला प्रैक्टिकल वो भी नहीं, ठीक है, जो हम लैब में परफॉर्म करते हैं। तो लैब में जो तुम थियरी वाला प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक चीज सर्च कर रहा हूँ, ठीक है, जिसपे तुमने प्रैक्टिकल्स परफॉर्म किए हैं। दिस, अगर तुम लोगों ने 80-85 पे प्रैक्टिकल परफॉर्म किया है तो ऐसी किट रहती है। ठीक है, दिस इज लाइक कि रेडीमेड हाथ में दे दिया है एंड तुम्हें बस कुछ बटन दबाने हैं और आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, सो इस पे प्रैक्टिकल्स नहीं हो सकते। दिस इज जस्ट टू वेरीफाई कि ठीक है, तुमने जो थ्योरी में पढ़ा था यहाँ प्रैक्टिकल करके देख लो, देखो काम करती है। ठीक है, ये फंडा नहीं होता है प्रैक्टिकल परफॉर्म करने का। प्रैक्टिकल इसलिए परफॉर्म नहीं करते कि हमने थियरी में जो पढ़ा था वो चीज़ें सच में प्रैक्टिकली काम करती है। ठीक है, तो हम मतलब आइडियली तुम्हें डाउट नहीं होना चाहिए। AICTE ने बुक छपाई है, बहुत सारे अच्छे लोगों से रेफरेंस लिया हुआ है, तो बुक में जो लिखा होगा झूठ नहीं होगा। ठीक है, अगर वो बोल रहे हैं कि डायोड 0.7 वोल्ट के बाद कंडक्ट करता है तो मतलब करता होगा। ठीक है, और मान लो तुम्हें डाउट है तो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर लिया, बट बात वही खत्म हो गई क्या? वही तो है, फिर थ्योरी में वही पढ़ा था, प्रैक्टिकल करने का क्या सेंस बना? राइट, प्रैक्टिकल करने का मतलब था नेक्स्ट व्हाट। ठीक है, जो थियरी में पढ़ा था उसको रियल लाइफ में यूज कैसे करेंगे, ये 0.7 के बाद जब वो कंडक्ट करता है तो इसका रियल लाइफ में क्या यूज है। ठीक है, तो वो डायोड जो तुम लोगों ने पढ़ा है थियरी में, कितने लोगों को पता है कि उसका रियल लाइफ में किस टाइप के एप्लीकेशंस होते हैं, कहाँ कहाँ क्यों क्यों यूज होता है। ठीक है, अगर ये तुमने किया तो रियली तुमने प्रैक्टिकल किया, अदरवाइज मिसिंग है। ठीक है, मिसिंग इज लाइक वोल्टेज इज 220 वोल्ट AC, रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है एक LED को ग्लो करने के लिए जो करंट लेता है 10 मिली एम्प। ये मैं हर बार पूछता हूँ, इसका आंसर सब निकालते हैं। 22 किलो ओम का रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा एंड देन आई प्रूव इट कि रेजिस्टेंस जल जाएगा। ठीक है, लिटरली उसमें आग लग जाएगी, धुआं निकलेगा। ठीक है, देयर इज समथिंग मिसिंग एंड दिस इज व्हाट इज थ्योरेटिकल नॉलेज। ठीक है, एंड व्हाट जो मिसिंग है वो क्या होता है कि कभी भी ये नहीं सिखाया कि ये वैल्यू प्रैक्टिकल है क्या। 22 किलो ओम का रजिस्टर सच में मार्केट में मिलता है? ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन इज लाइक कि पावर रेटिंग क्या होने वाली है। ठीक है, थ्योरेटिकली तो पढ़ रखी है बट कभी प्रैक्टिकली दोनों को कोरिलेट नहीं किया। तुम जब ये कैलकुलेशन करते हो, जो भी पावर रेटिंग आती है इट इज टू हाई, उस हाई पावर रेटिंग में जो भी रेजिस्टेंस तुम चूज करते हो वो जल जाता है। ठीक है, तो ये जो प्रैक्टिकल सेंस है, ये जब तक नहीं पता रहेगा तब तक तुम कभी भी फ्रूटफुल नहीं बन पाओगे। ठीक है, कभी भी वो वैल्यू नहीं मिलेगी। सो यू हैव टू लर्न दीज थिंग्स इन अ प्रैक्टिकल सेंस। सही है, और एक बार वो सब कुछ सीख लिया तब करियर अपॉर्चुनिटीज जो रियल हैं वो तुम्हारे लिए ओपन होगी। ठीक है, अदरवाइज हमेशा ऐसी जॉब रोल मिलेगी कि ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी। ठीक है, और ये फिर 1 साल 2 साल 3 साल तक यही जॉब रोल रहेगी। तुम्हें यहाँ से निकल के जाना पड़ेगा कि तुम मैनेजर, प्रोडक्ट मैनेजर बन गए हो, प्रोडक्ट डेवलपर बन गए हो, R&D टीम का पार्ट बन गए हो। ठीक है, R&D टीम का हेड बन गए हो। ये जॉब रोल तब ओपन होगी जब तुम्हें ये सब कुछ आ जाएगा, तब तक लोग तुमसे ये बात करेंगे ही नहीं। ठीक है, क्योंकि हर बार वो इंटरव्यू में ऐसे बेसिक क्वेश्चन पूछेंगे, उन्हें कुछ मिसिंग लगेगा, बट इसकी भी रिक्वायरमेंट रहेगी तो बोलेंगे ठीक है ये जॉब रोल है, इसको ज्वाइन कर लो तुम, पर्टिकुलर पैकेज में 5 लाख 6 लाख। ठीक है, और जो प्रोडक्ट मैनेजर, प्रोडक्ट डेवलपर, R&D है, उनका पैकेज इसका 3 टाइम्स रहता है। ठीक है, तो मतलब एक और एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल देयर इज अ गाय सत्यम गुप्ता। ठीक है, और ये असली बंदा है, तो असली मतलब एग्जिस्ट करता है, थ्योरेटिकल नहीं है। तो मैं दिखाता हूँ सत्यम गुप्ता कैसा दिखता है। ठीक है, और सत्यम गुप्ता क्या करता है, तो हम उसकी लिंक्डइन प्रोफाइल देख लेते हैं। तो ये है सत्यम गुप्ता। ठीक है, सत्यम गुप्ता की करंट जॉब रोल ये है, मोबाइल रोबोटिक्स इंजीनियर, एडवर्ब टेक्नोलॉजी। एडवर्ब टेक्नोलॉजी को रिसेंटली अच्छा खासा पैसा दे के रिलायंस ने खरीद लिया है। ठीक है, इनकी ब्रांच थी, दिख रहा है, केमिकल इंजीनियर, ये। ठीक है, सत्यम गुप्ता पास आउट हुआ 2020 में, लॉकडाउन चल रहा था। ठीक है, लॉकडाउन में भी सत्यम गुप्ता को एडवर्ब टेक्नोलॉजी ने आके हायर किया, अराउंड 10 to 12 लाख पर एनम एज अ फ्रेशर ऑफर किया है। ठीक है, क्यों किया? क्योंकि वो जो मिसिंग स्किल थी वो इन लोगों के पास थी।
सत्यम के साथ उसका एक और फ्रेंड प्लेस हुआ था, मोहम्मद साद, ठीक है। इन दोनों को ऑलमोस्ट सेम पैकेज और सेम टाइप का काम मिला है। साथ की ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक्स थी और सत्यम की ब्रांच केमिकल थी, दोनों को सेम टाइप का जॉब रोल मिल पाया। इसके जॉब रोल में थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स ज़्यादा है, इसके जॉब रोल में थोड़ा सॉफ्टवेयर ज़्यादा है, क्योंकि उन लोग का फील्ड ऑफ इंटरेस्ट होता, ठीक है। तो ये टाइप की जॉब है ना, ये तब ओपन होती है। और एक्चुअली में जब एडोब टेक्नोलॉजी आई थी हायरिंग के लिए, तो वो लोग किसी और जॉब रोल के लिए मैनेजर्स हायर करने के लिए आए थे। फिर उन्होंने सडनली एक वेबसाइट, कॉलेज की वेबसाइट देख रहे थे, उन्हें ये दिखाई दिया, ठीक है, जो सत्यम की प्रोफाइल में यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। तो उन्होंने ये वेबसाइट खोल ली और फिर देखा और उनको क्लिक हुआ कि ठीक है, ये तो हमारे पास रिक्वायरमेंट है, हम इसकी हायरिंग यहाँ से क्यों नहीं कर रहे, ठीक है। तो वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इस लेवल के लोग मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि थ्योरी और सिलेबस में तो है ही नहीं। तो जब उन्होंने ये देखा कि ठीक है, यहाँ पर इस टाइप की चीज़ें डेवलप हुई है, ठीक है, रोबोट्स बनते हैं, तो दिस इज लाइक कॉलेज स्टूडेंट का कॉलेज ग्रुप, ठीक है, क्लब है। तो इसमें कहीं, हाँ, तो ये पुरानी फोटो है, दिस इज सत्यम, दिस इज मोहम्मद साद, जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। फिर उन्होंने एक नई जॉब रोल क्रिएट की ऑन द कैंपस। कैंपस में आ गए थे, इंटरव्यू लेने से एक दिन पहले वो वेबसाइट विजिट कर रहे थे और क्या स्टोरी हो गई। फिर उन्होंने बोला कि ठीक है, हमें इस वाली फील्ड की भी रिक्वायरमेंट है रोबोटिक्स के लिए, और प्रोफेसर्स वगैरह से, मतलब जो भी टीएनपी होते हैं, उनसे बात करके बोला कि ठीक है, इन लोगों के लिए हम एक नई हायरिंग का 3-4 जॉब रोल ओपन कर रहे हैं, इन लोगों से बातचीत करो, इनको अप्लाई करने के लिए बोलो, ठीक है। एंड दिस टाइप ऑफ जॉब रोल उनके लिए ओपन हुआ और इजीली एज अ फ्रेशर मिल गया, ठीक है, फर्स्ट ईयर। तो करियर अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो इट इज़ लाइक कि प्रैक्टिकली देखोगे तो लॉट मैनी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनीज इंडिया में है। नॉइस इंडिया से ऑपरेट हो रहा है, ठीक है, बोट इंडिया से ऑपरेट हो रहा है। अभी रिसेंटली बहुत सारी फैक्ट्रीज इंडिया में शिफ्ट हो गई है, एप्पल प्लान कर रहा है, एप्पल भी इंडिया में ऑलमोस्ट मैन्युफैक्चरिंग चालू कर चुका है, ठीक है। ये सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज है। सैमसंग की मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इंडिया में है, रेडमी का भी है अभी, और इतनी सारी कंपनीज शिफ्ट होने वाली हैं रिसेंटली अगले कुछ 2-3 सालों में, जो गवर्नमेंट सेमीकंडक्टर की स्कीम डेवलप कर रहा है, ठीक है। तो अगर तुम लोगों को नहीं पता हो तो न्यूज़, ठीक है। तो गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग $80 बिलियन मैन्युफैक्चरिंग में फॉर स्पेसिफिकली इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड फील्ड में, इलेक्ट्रॉनिक्स एम्बेडेड सिस्टम, जहाँ पे ये सारी चीज़ें कॉमन होने वाली है, ठीक है। एंड रोबोटिक्स इज लाइक वन ऑफ द मेजर थिंग जो होने वाला है। तो ये सब जॉब रोल्स लेके आएंगे, जॉब्स लेके आएंगे। अल्टीमेटली अच्छे प्रोडक्ट इंजीनियर्स, स्पेसिफिकली इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सीएस प्रोडक्ट इंजीनियर्स मिसिंग है, इवन सीएस भी, ठीक है। आईटी वर्सेस सीएस में फर्क होता है, ठीक है। ये बंदा एल्गोरिदम बना सकता है, ठीक है। तो मुझे पाइथन आता है वर्सेस मैं एल्गोरिदम बिल्ड कर सकता हूँ, इन दो आंसर से जॉब रोल बदल जाती है, ठीक है। तो वेयर यू वांट टू लाई, दैट यू हैव टू फिगर आउट। उसकी स्किल बिल्ड करनी पड़ेगी, एंड वंस यू स्किल, मतलब पहले तो एक्सपोजर लेना पड़ेगा, ठीक है, कि दुनिया में क्या क्या एग्जिस्ट करता है। जैसे अभी मैंने कुछ चीज़ें बताई तो तुम्हें ये ग्राफ का फंडा समझ में आया, ठीक है, जॉब रोल्स का फंडा समझ में आया। तो ऐसे खुद को एक्सपोज करना पड़ेगा। फिर एक बार एक्सपोज हो गए तो चीज़ें सीखनी पड़ेगी, ठीक है, लर्न करनी पड़ेगी। एक बार लर्न हो गया, अप्लाई करना पड़ेगा, इंटर्नशिप, प्रोजेक्ट्स, ये सारी चीज़ें बना के देखनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि थ्योरेटिकल कि मैंने जाके यूट्यूब पे वीडियो देख लिया, ठीक है, पूरा 6 घंटे का कोर्स था, पूरा 6 घंटे का कोर्स देख लिया ऑपरेटिंग सिस्टम का, मुझे ऑपरेटिंग सिस्टम समझ में आता है। फिर 6 घंटे का कोर्स मैंने देख लिया माइक्रो कंट्रोलर का, माइक्रो कंट्रोलर समझ में आता है। 6 घंटे का रोबोटिक्स देख लिया, रोबोटिक्स समझ में आता है। ऐसे देखने से स्किल बिल्ड नहीं होती है। देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस जब तुम देखते हो और तुम्हें लगता है कि समझ में आ गया, वर्सेस कि अगर मैं तुम्हें अभी टास्क दूं कि कितने लोगों को सी आती है, ऑलमोस्ट सबको आती है, एक फंक्शन बनाओ, 2+2 ऐड करके वैल्यू रिटर्न करनी चाहिए, और उसके अंदर जो आर्ग्यूमेंट जाना चाहिए वो पास बाय रेफरेंस जाना चाहिए। जब मैंने इतने जार्गन्स बोल दिए तब मैक्सिमम लोग अटक जाएंगे कि ठीक है, मुझे सी का फंक्शन आता है, उसके आगे का नहीं आता। बट वहाँ की जॉब रोल अलग है, वो नहीं चाहिए किसी को, ठीक है। लोगों को क्या चाहिए कि पास बाय वैल्यू, पास बाय रेफरेंस समझ में आना चाहिए, वो फंक्शन बिल्ड होना चाहिए, आउटपुट आना चाहिए रियल टाइम में, ठीक है, कि पेज पे लिखने वर्सेस प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने में डिफरेंस रहेगा, राइट। सो ये वाली स्किल जब तुम अचीव कर लोगे, तब तुम्हें जब जॉब रोल्स दिखेंगी वो कंप्लीटली अलग रहेंगी, और वहां पर तुम्हारी वैल्यू बहुत ज़्यादा है,
क्योंकि बहुत ही कम लोग हैं जिनको उतना स्किल है उन दो कोर फील्ड में, ठीक है। तो लिंक्डइन पे जाके इफ यू गूगल आउट जॉब्स का सेक्शन, ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक, जस्ट अ मिनट, और देन यू सी, मतलब देखना क्या है, फ्रेशर्स की मत देखो, देखोगे जो लोग 3+ ईयर एक्सपीरियंस मांग रहे हैं, ठीक है, वो लोग कितना पैकेज दे रहे हैं। जैसे एबीबी प्रोडक्ट स्पेशलिस्ट मांग रहा है, ठीक है, ये कितना पैकेज दे रहा है, कितने साल का एक्सपीरियंस बंदों को मांग रहा है, ठीक है, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट। एंड आज के दिन तुम तो नहीं हो, बट 3 साल बाद तो हो जाओगे ना, और उस 3 साल बाद की सैलरी के लिए तुम आज से 3 साल प्रेप कर लो, ठीक है, कि ये बनने के लिए वो बोल रहा है कि 3+ ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, आज नहीं है, ठीक है। बट अगर आज तुमने बोला कि आज मुझे 0 ईयर का एक्सपीरियंस है और ये वाली कंपनी है जो 0 ईयर का मांग रही है, और इसमें ही ज्वाइन हो जाते हैं, जो भी काम दे चलेगा, ठीक है, वर्सेस कि तुमने बोला कि ठीक है 3 ईयर्स एक्सपीरियंस को ये वैल्यू मिलती है, ये पैकेज मिलता है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर एबीबी तुम्हें 15 लाख दे रहा होगा 3 साल एक्सपीरियंस के लिए, ठीक है, एंड देन यू कंपेयर कि इसको अगर तुमने ज्वाइन कर लिया, ये जो 0 ईयर एक्सपीरियंस पे दे रहा है, फर्स्ट ईयर क्या होगा, सेकंड ईयर क्या होगा, थर्ड ईयर क्या होगा, थर्ड ईयर के बाद तुम ये वैल्यू अचीव कर पाओगे क्या, नहीं। अगर नहीं तो ये लॉजिकल है कि तुम ये बनने के लिए 3 साल स्पेंड कर दो, खुद को बिल्ड करो, ठीक है। मे बी आज के दिन तुम्हें पैकेज कम मिलेगा, जॉब रोल स्लो होगा, ठीक है, सब कुछ होगा, पर 3 साल के बाद जब तुम इस वैल्यू, मतलब इतना बड़ा डिस्क्रिप्शन लिखना पड़ रहा है काम के लिए, और तुम्हें अगर ये सब कुछ आ गया, तो तुम मार्केट में जितने यूनिक होगे ना, फिर डिफरेंस होगा, ठीक है। फिर इंटरव्यू ऐसा नहीं होगा कि क्या बोलते हैं कि इतना पैकेज है, काम करना है क्या, फिर उल्टा होगा, तुम बोल सकते हो कि मेरे पास ये स्किल है और मैं इतनी सैलरी के नीचे काम नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। तो ये डिफरेंसेस तुम अचीव कर पाओगे। फंडा समझ में आया? सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू फोकस, ठीक है, इन सब चीज़ों को। मतलब फॉर एग्जांपल ये चीज़ें मुझे समझ में आती हैं, बहुत बार मैं वर्बली स्टूडेंट को कुछ कुछ जो लोग आके पूछ लेते हैं उन्हें बता देता हूँ, ठीक है, बट बहुत लोगों तक नहीं रीच आउट होता है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को सॉर्ट आउट करने के लिए ये जो एक प्रोडक्ट डेवलपमेंट वाला कोर्स है, हमने ये बिल्ड किया। हमने बोला कि ठीक है, एक काम करते हैं, खाली खाली स्किल नहीं, स्किल के साथ ये चीज़ों को मिक्स कर देते हैं, ठीक है। एक ऐसा कोर्स बिल्ड करते हैं जहाँ पे ये पूरा का पूरा लॉजिक इंप्लीमेंट हो जाए, ठीक है। कि लॉजिक क्या इंप्लीमेंट हो जाए, एक्सपोजर। एक्सपोजर के लिए हम लोग कोर्सेज में, फॉर एग्जांपल मैंने सत्यम और अजिंक्य का एग्जांपल दिया है ना, इन लोगों को एक ऑनलाइन सेशन में लेके आऊंगा। अजिंक्य फिलहाल CMU में है, US में, सत्यम दिल्ली में है। इन लोगों से हम लाइव ऑनलाइन सेशन बातचीत करें, ठीक है, और बातचीत करने के बाद तो एक्सपोजर समझ में आएगा ना, ये लोग अपनी लाइफ में बताएंगे मैंने कैसे किया था, तुम क्वेश्चन पूछ पाओगे, ठीक है। ऐसे बहुत सारे अलग अलग जॉब रोल वाले लोगों को लेके आएंगे, ठीक है, एक्सपोजर कंप्लीट होगा। इस कोर्स में ये सारा का सारा टेक्निकल एस्पेक्ट कि ये स्किल लगेगी, स्किल, ठीक है, ये सीख लो, ठीक है, इसको अप्लाई करके देखना है। इससे हम रियल लाइफ के प्रोजेक्ट्स, जैसे अभी मैंने दिखाया, ऐसे हम प्रोजेक्ट्स बना के देखेंगे, ठीक है। इसके बाद तुम्हें लगता है कि ठीक है और भी इंटरेस्ट है, कंटिन्यू कर सकते हैं, इंटर्नशिप्स वाले पार्ट्स हैं, ठीक है, जहाँ पे फिर तुम इंटर्नशिप्स करो, ठीक है। मैगजीनिया में सिर्फ ट्रेनिंग नहीं होती है, ठीक है, मैगजीनिया डज दिस ऑल्सो, ठीक है, कि बहुत सारी कंपनीज के लिए हम ऑटोमेशन सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते रहते हैं, प्रोडक्ट बिल्ड करते हैं, ठीक है। सो दीज आर लाइक फ्यू ऑफ देम। इन सब के लिए तुम्हें इन्वॉल्व करेंगे, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अभी उदय है क्या, ठीक है, हाँ, जयेश और उदय है। जयेश और उदय आर लाइक पार्ट ऑफ मैगजीनिया जो अभी अटेंड कर रहे हैं। दे आर वर्किंग ऑन अ प्रोडक्ट, ठीक है। यहाँ पे जो दिख रहा है ये मैंने शिफ्ट बंद कर दिया, जस्ट कंट्रोल शिफ्ट कीजिए तो ओपन हो जाएगा, और दिस थिंग, ठीक है, दिस इज लाइक अ मैगजीनिया का माइनिंग का प्रोडक्ट है, विच इज ISI सर्टिफाइड, माइंस में यूज होता है, कोल इंडिया जैसी कंपनी यूज करती है, ठीक है। इसका वर्जन 2 बनाने के लिए वो लोग काम कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली होगा क्या, वो एक्सपोजर मिलेगा, जो थियोरेटिकली सीखा था वो प्रैक्टिकली अप्लाई करने का चांस मिलेगा, राइट। सो ये लूप कंप्लीट हो जाएगा जब तुम ये सब कुछ कर लोगे। तो ऑब्वियसली तुम्हारा रिज्यूमे, तुम्हारा कवर लेटर, तुम्हारा एक्सपीरियंस जो नॉर्मल क्राउड है उससे 3, 4, 10 स्टेप आगे रहेगा, राइट। तो अगर कोई बंदा आके मैगजीनिया में अप्लाई करता है, बोलता है कि मुझे ये सारी चीज़ें आती है, तो मैं कुछ सोचूंगा ही नहीं, बोलूँगा ठीक है कल से आ जाओ, ठीक है, एंड वॉट एवर बेस्ट पैकेज आई कैन ऑफर मैं उसको दे दूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि ये जब सबसे ज़्यादा फ्रूटफुल होने वाला है,
गेटिंग द पॉइंट। तो ये सारा जो लॉजिक था हमने बिल्ड किया, हमने बोला कि ठीक है इन सबको लूप में क्रिएट करते हैं, लेट इट ऑफर टू पीपल, ठीक है। एंड देन वी हैव क्रिएटेड दिस मैगजीनिया का प्रोडक्ट स्कूल। प्रोडक्ट स्कूल का फंडा इज दिस कि लर्न, ठीक है, पहले तो एक्सप्लोर कर लो, एक्सप्लोर लर्न अप्लाई अर्न, ठीक है, एंड दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग, ठीक है। तो एक्सप्लोर करो, सीखो, अप्लाई करो, देन अर्न, एंड वी आर क्रिएटिंग दिस कंप्लीट लूप। अदरवाइज क्या होता है, बहुत बार मतलब वन ऑफ द रीजन की ये क्यों करना भी पड़ा कि बहुत बार लेट से मैंने तुम्हें बता दिया, तुम्हें पता है, ठीक है, कि ठीक है ये ऑप्शंस है, एक्सप्लोर कर सकते हैं, लोगों से बातचीत कर सकते हैं। तो लिंक्डइन पे जाके तुम एक्सप्लोर कर सकते हो, अजिंक्या से, सत्यम से, इन सब से बातचीत कर सकते हो, ऐसे और भी बहुत सारे लोगों से। बट हो सकता है वो तुम्हें टाइम ना दे, ठीक है। वो देखेंगे तुम्हारा रिज्यूमे, तुम्हारा लिंक्डइन का प्रोफाइल, बोलेंगे यार इसको तो कुछ पता ही नहीं है, इससे बात करना टाइम वेस्ट हो जाएगा। बट वो मुझे टाइम देने के लिए रेडी है, ठीक है। और मैं उनको बोलूंगा कि ठीक है कुछ बच्चे हैं अच्छे हैं, उनसे मिल लो, तो मिल लेंगे, ठीक है। कि ये इंजीनियरिंग के कुछ स्टूडेंट्स हैं, ये अलग है, तो वो तुमसे मिलेंगे, तुमसे बातचीत करेंगे, सही है। फिर सेकंड पार्ट आएगा कि जब मान लो तुम्हारी अजिंक्य कामत से बात हो गई और फिर अजिंक्य कामत ने बोला कि ठीक है ये सीक्वेंस में ये चीजें सीखने से ये इम्पैक्ट आएगा, इस तरीके के चीजें तुम अचीव कर सकते हो, इस जॉब रोल्स को अचीव कर सकते हो, एमएस में ऐसे अच्छे कॉलेज ले सकते हो, इंटर्नशिप्स के लिए अच्छे से अप्लाई कर सकते हो। तो ये सब कुछ जब तुम्हें समझ में आया तो वो स्किल अगेन सीखने का पार्ट आएगा। और ऑनलाइन सॉफ्टवेयर वाला पार्ट तो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं जो लैपटॉप में काम हो जाए, बट जब हार्डवेयर की बात आती है तो चीज़ें मिस हो जाती हैं, ठीक है। वो हार्डवेयर की अवेलेबिलिटी, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर से थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है, जिसकी वजह से उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है ऑब्वियसली, ठीक है। तो ये सीखने के लिए फिर हम यहाँ हैं, यहाँ पे वी विल हेल्प यू कि ठीक है ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्ड है, ऐसे 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 करके चीज़ें बिल्डअप होगी कि पहले सीधे के सीधे तो माइक्रो कंट्रोलर उठा लोगे तो काम हो जाएगा, बट बहुत कुछ समझेगा नहीं। बट उसके माइक्रो कंट्रोलर के अंदर क्या है, ठीक है, उस सर्किट में क्या है, पहले ये समझ लेते हैं, वो सर्किट कैसे बना ये समझ लेते हैं। तो उस स्ट्रक्चर में चीज़ें डिजाइन की है, ठीक है। और फिर उसको अप्लाई करने के लिए वी हैव एडेड कि ठीक है अगर शॉर्ट टर्म कोर्स है तो कोर्स के साथ साथ हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट हो रहे हैं, तुम लॉन्ग टर्म वाला कोर्स ज्वाइन करते हो तो उसमें इंटर्नशिप्स वाला पार्ट भी ऐड हो जाएगा। और एक बार ये सब कुछ ज्वाइन कर लिया तो हमारे नेटवर्क में जितनी भी कंपनीज हैं, हमें पता है कि ठीक है तुम्हें नॉर्मल क्राउड से ज़्यादा आता है, उन कंपनीज को रिक्वायरमेंट है, हमेशा पूछते रहते हैं कि ठीक है हमें इस कैटेगरीज के बच्चे चाहिए, हमें लोग चाहिए, ये जॉब रोल्स के लिए इंजीनियर्स चाहिए, तो वी कैन कनेक्ट यू डायरेक्टली, ठीक है। और एक बार तुम्हें ये सब कुछ आ गया, तुम्हें अपना बिजनेस बिल्ड करना है, वी कैन हेल्प यू देयर, तुम्हें जॉब चाहिए, वी कैन हेल्प यू देयर, राइट। सो ये कंप्लीट लूप क्लोज करने के लिए देयर इज दिस प्रोडक्ट डेवलपमेंट का कोर्स, ठीक है, जिसके लिए मोस्टली वी आर हियर, तुम सबको उस कोर्स के बारे में पता है, राइट। सो फ्रॉम माई साइड दिस विल बी इट। अगर तुम लोगों को कुछ पूछना है क्वेश्चंस, सो यू कैन आस्क राइट नाउ, ठीक है। एंड जितना जल्दी शुरू करोगे उतना बेटर है। द अर्लियर यू स्टार्ट द मोर टाइम यू विल हैव। तुम फोर्थ ईयर में हो वर्सेस तुम फर्स्ट ईयर में हो, तो फोर्थ ईयर वाले के पास सिर्फ 1 साल है, फर्स्ट ईयर वाले के पास 4 साल है, राइट। so there is one logic। और अगर तुम लेट हो गए हो तो तुम्हें और अर्जेंट होना चाहिए कि और ज़्यादा फास्ट सीखना पड़ेगा, और ज़्यादा जल्दी जल्दी इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, ओके। सो दिस वाज इट। एनीवन वांट्स टू आस्क एनीथिंग? सो शुरू में मैंने टाइम सेव करने के लिए डेमोस थोड़े फास्ट दिए थे, अभी बस मैं दिखा देता हूँ कि दिस इज द ग्राफ, तब 2 वैल्यू थी और अभी इतनी सारी वैल्यूज आ गई हैं, एंड यू कैन सी द टाइम, ठीक है। सो जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो यू विल बी एबल टू सी हियर टाइम एंड व्हाट इज द वैल्यू, डेट एंड एवरीथिंग की अभी की वैल्यूज हैं। 1727 से ये वैल्यूज आना शुरू हुई थी, फिर बीच में वो हिल गया था, पावर ऑफ था, तो बीच में गैप दिख रहा है, और ये अभी करंटली वैल्यूज आ रही हैं, ठीक है। सो दीज आर लाइक ह्यूमिडिटी की वैल्यूज, दीज आर टेम्परेचर की वैल्यू। जब शुरू किया था तो 28.5 था, बीच में मैंने फैन बंद कर दिया था, जब आवाज़ कम आ रही थी तो 28.9 था, फिर से फैन चालू किया, फिर से बंद किया। तो दीज आर टेम्परेचर वैल्यूज, बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है, ग्राफ अप डाउन दिख रहा है बिकॉज 28.5 से 28.9 के बीच में वो मैनेज कर रहा है ग्राफ को, ठीक है। सो दिस इज लाइक पार्ट ऑफ IoT जो हम सीखेंगे कि कैसे करते हैं, ठीक है। एंड हार्डवेयर लुक्स लाइक दिस। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, कैसे यूज करना होता है, कैसे प्रोग्राम करना होता है, वी आर गोइंग टू लर्न ऑल दिस, ओके। एंड इट डजेंट मैटर कहीं से भी सीखो, कोर्स ज्वाइन करो या मत करो, बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज लाइक लर्न इट, ठीक है। ओनली द थिंग इज कि वी कैन फैसिलिटेट इट बेटर, ठीक है, वी कैन मेक द लर्निंग फास्टर। सो
Anyone wants to ask anything? Yes, no? So I am not able to hear anything. मतलब कोई कुछ नहीं बोल रहा है या फिर तुम लोग बोल रहे हो और मुझे सुनाई नहीं दे रहा है. Okay. So I will assume कि किसी को कुछ question नहीं पूछना. You can type in chat box if you want, and otherwise you can connect to the WhatsApp personally. ठीक है, WhatsApp पे reply कर लोगे. I think उदय ने एक बार सबसे बात की है. ठीक है, so you can connect to him also, and through him you can connect to me. Okay then, this will be it. Bye bye guys.